Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes. Myself Maheen Haider, working as SS Chemistry in Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today I am going to deliver you a lesson from class 8, chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Our today's topic is relative atomic mass and atomic mass unit. Learning objectives of this lesson. By the end of the lesson, students will be able to describe the terms relative atomic mass and AMU, state that carbon 12 is used as a standard measurement of relative mass and the relationship between gram and AMU. Before proceeding to today's lesson, let's have a look on previous knowledge. In the previous lesson, we have studied about atomic number and atomic mass. What is atomic number? The number of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number. Means nucleus में जितने भी number of protons present होंगे वो उस atom का atomic number होगा. For example, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 protons present है means उसका atomic number 8 होगा. Next is atomic mass. The sum of the number of protons and the number of neutrons present in the nucleus of an atom is called its atomic mass. एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मींस उसका एटॉमिक मास 19 होगा. Let's have a look on today's topic, relative atomic mass. Relative atomic mass of an element is defined as the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. Relative atomic mass में relative का मतलब होता है relate करना, कंपैरिजन करना और कंपैरिजन के बाद जो रेशो निकलती है उस रेशो पे डिफरेंट चीज़ों को वैल्यू को एवेल्युएट करना. एटॉमिक मास जैसे कि हम अभी प्रीवियस नॉलेज में देख कर आए हैं, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास. अब इसमें एक वर्ड आया है कार्बन 12 आइसोटॉप. आइसोटॉप हमने पढ़े हैं एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन एलिमेंट्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं. क्योंकि कार्बन 12 अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है हमारे पास, दैट इज़ वाई साइंटिस्ट यूज्ड कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड. और उसके साथ फिर डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके हमें एटॉमिक मासेस फाइंड करने हैं हम उनको कार्बन के साथ रिलेट करके कंपेयर करके जो रेशो निकलती है दैट इज़ कॉल्ड इट्स relative atomic mass. Let's have a look on the explanation of this topic. Based on carbon 12 standard, the mass of an atom of carbon is 12 units and 1/12 of it becomes to be 1 unit. यानी कार्बन को जब साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड के तौर पे लिया तो उसके साथ जितने भी एलिमेंट्स हम जब कंपेयर करेंगे तो कार्बन को हम 12 यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे. अगर मैं कार्बन के 12 यूनिट को मतलब कि जो उसका 12वां हिस्सा है उसको अगर मैं 1 यूनिट कंसीडर करूं तो दैट मीन्स कि दैट 1 यूनिट इज कॉल्ड टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट टू बी कंपेयर्ड. When we compare atomic masses of other elements with atomic masses of carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic masses of those elements. जब हम different elements जिनके atomic masses को हमने find out करना होता है हम उनके atomic masses को जब carbon 12 के साथ compare करते हैं तो जब relate और comparison के बाद जो हमारे पास ratio निकलती है they are expressed as relative atomic masses of those elements. Before going to the further explanation and detail along with examples of this topic, example from oxygen atom. For example, as you seen in this diagram,
ऑक्सीजन एलिमेंट को हमने शो किया है और उसके साइड पे हमने कार्बन के यूनिट्स को रखना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे कार्बन के यूनिट्स रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्बन बैलेंस नहीं हुआ और ऑक्सीजन क्योंकि हैवी होने की वजह से लो डाउन बिलो लाया जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि कार्बन के जैसे जैसे हमने यूनिट्स बढ़ा दिए हैं, तो एक टाइम ऐसे आया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, और इस कंडीशन में हम कहेंगे कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। एवरीथिंग हैज़ क्वांटिटी, हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते हैं। हर क्वांटिटी का अपने तौर पे एक यूनिट होता है जिससे कि उसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टाइम का यूनिट है सेकंड, लेंथ का यूनिट होगा एल और मास का यूनिट है एम। इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिफरेंट यूनिट्स हैं जिससे उनको एक्सप्रेस किया जाता है। इसी तरह एटॉमिक मास यूनिट को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास। मीन्स द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसका सिंबल जिससे इसको एब्रीविएट किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड AMU. It is defined as one atomic mass unit is 1/12 the mass of carbon 12 isotope. यानी कि कार्बन के 12वें हिस्से का जो वजन होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1 AMU, या हम उसको एक यूनिट कंसीडर करेंगे। द एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एटॉमिक मास को आमतौर पे हम ग्राम्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी एक AMU ग्राम की 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, एंड इट्स कांस्टेंट वैल्यू, इट कांट बी चेंज। और इस वैल्यू को हम यूज करके डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मैसेज AMU में होते हैं हम उनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन एटॉमिक मास यूनिट एग्जाम्पल, जिससे आपको ये कुछ बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो सके। एटॉमिक मास यूनिट एज वी नो कि हमने कार्बन का स्टैंडर्ड यूनिट लिया और अभी हमने उसकी डेफिनेशन में देखा है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन के 12वें हिस्से का को अगर हम 1 AMU कंसीडर करें दैट विल बी इट्स एटॉमिक मास यूनिट। जहां हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा था कि कार्बन के साथ अगर हम उसके 12 यूनिट्स को रखते हैं, अगर मैं उसके एक यूनिट को एक AMU कंसीडर करूंगी दैट विल बी द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ दैट एलिमेंट, और उसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे और यूनिफाइड के तौर यूनिट के तौर पे यूज कर सकते हैं। एज यू शोन इन दिस डायग्राम कि 1 AMU इज इक्वल टू सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन, और क्योंकि हम जानते हैं कि मास का स्टैंडर्ड यूनिट तो किलोग्राम है, लेकिन क्योंकि एटम बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है तो हम उसको किलोग्राम से एक्सप्रेस करने के बजाय स्मॉलर यूनिट एटॉमिक मास यूनिट को यूज करेंगे। दैट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। कार्बन के 12वें हिस्से के वो बराबर होगा। दैट इज वाई वी यूज्ड AMU एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक mass, or you can call it as unified atomic mass. To enhance the concept about this topic, let's have a look on some examples from our daily examples from chemistry. As you seen in this diagram कि मैं ऑक्सीजन को मैंने एक साइड पे लिया और एक साइड पे मैंने 16 यूनिट्स ले लिए हैं कार्बन के। ये एग्जांपल हम अभी पिछले रिलेटिव एटॉमिक मास में भी कंसीडर करके आए हैं। अगर वहाँ जहाँ पे हमने 16 यूनिट्स लिखा था, नाउ वी हैव राइटिंग दिस 16 AMU मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU, means the relative atomic mass of oxygen is going to be 16 AMU. इसी तरह सोडियम का मास, एक तरफ हमने सोडियम का एटम रख दिया और एक तरफ हम कार्बन के यूनिट्स को रखना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों साइड्स जो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी और हमें पता लगा कि एक सोडियम एटम जो है वो 23 यूनिट्स के बराबर, कार्बन के 23 यूनिट्स के बराबर होता है। दैट्स वाई मास ऑफ 1 सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU, और यू कैन कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम।
इन द सेम वे सो नाइट्रोजन का मास एक साइड पे नाइट्रोजन एटम रखा और दूसरी साइड पे 14 हमने यूनिट्स रखे नाइट्रोजन के कार्बन के, और जब हमने उन दोनों को कंपेयर किया और इक्विलिब्रियम में लेकर आए तो एक स्टेट ऐसी आई कि बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज के मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 AMU और द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि जब हम इस तरह करके उसको कंपेयर कर सकते हैं, इट इज़ फॉर योर ईज़ हमने इसको यूज़ किया, लेकिन फॉर द प्रैक्टिकली हम एटम्स के एलिमेंट्स को ऐसे फाइंड नहीं करते, उसके लिए हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक यूज़ करते हैं विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम्स एंड AMU। अब हम पीछे देखकर आए हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट्स जो हैं वो मोस्टली एक्सप्रेस्ड होते हैं AMU में, लेकिन हम उनको ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज वी नो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं AMU की वैल्यू को ग्राम्स में चेंज करूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मीन्स कि हम एटम का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मैसेज हैं हम उनको AMU और ग्राम्स दोनों में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल mass of proton is 1.0073 in AMU और in grams it is 1.672 into 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं कहूँ कि मैं ग्राम्स में इसकी वैल्यू को लेना चाहती हूँ और मुझे प्रोटॉन का मास AMU में नहीं चाहिए, तो सिंपल वैल्यू ये है कि 1 AMU हमें पता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। तो जो वैल्यू हमारे पास AMU में आई है 1.0073 AMU, उसको अगर हम 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24, वी गॉट द मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम्स एज 1.672 इंटू 10⁻⁻24 grams. In the same way, mass of neutron is 1.0087 AMU, or you can also take its value by multiplying with 1 AMU's value, that is 1.66 into 10⁻⁻24 gram, and its value is going to be 1.674 into 10⁻⁻24 gram. Means you can find the value of atoms or masses of protons or neutrons or any other elements के एटम्स के जो मास है हम वो ग्राम्स और AMU दोनों में फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द होल लेसन जो आज हमने पढ़ा है। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास के रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि एलिमेंट्स का एवरेज मास जो कि हम कंपैरिजन में कार्बन 12 आइसोटॉप्स के साथ निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इट्स यूनिट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि वन मास ऑफ कार्बन वन एटम 1/12 ऑफ द कार्बन इज द मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक यूनिट कार्बन का जो उसका मास होगा दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास यूनिट। और वी हैव स्टडीड कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन द लास्ट हमने पढ़ा है कि रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम, हाउ बोथ आर रिलेटेड, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेट हैं और कैसे हम ग्राम से AMU में वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद AMU स्टैंडर्ड वैल्यू। On the last, you have an assignment or a home task which you have to done on your notebooks in the very neat and way. Some of the questions related to the topic are, is atomic mass unit SI unit of atomic mass? Why atomic mass of an atom defined as relative atomic mass? Why atomic mass unit is needed? How relative atomic mass related to grams, and how many AMU 1 gram of a substance has? Write down the answers or the concepts which you have taken from this lesson and do it in your notebooks very neatly. At the end, thank you. Stay home, stay safe, study well. Allah Hafiz. रिज्यूम कर दिया तो उसको एडिट कर लो। एडिट